You know that in homeopathy, from the very beginning, what we learn, हमें एक चीज हमारे दिमाग में डाली जाती है that we have to find a acting deep acting remedy, deep case taking, and we have to go into the depth of a case. I mean, these are the lines which are for the practitioner. So I always wonder that how to understand that a physician, I mean for a physician, एक physician को कैसे पता चलेगा कि वो डेप्थ में पहुंच गया पेशेंट. I mean, how could, if is there any parameter, is there any guideline, is there any meter you can put here on your head and it will say, okay, now you have reached to the depth of the case. Yeah, any meter we have. Or I mean that how it is possible for a practitioner to know that the remedy which he has found for a patient is a deep acting or not deep acting, and how deep a remedy has to work. What is the depth? From where we understand the depth of a case. I mean that how far we have to go deep. Is there any limit? That it means that from the hair to the toe, that is the deepest part. We start from the hair and then go to the toe. That is the only the deepest way. जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो वहां क्या होता है कि भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. डाइवर्सिटी हो जाती है. देयर आर मेनी चांसेस दैट वी गेट डाइवर्स. आवर ओन माइंड इज गेट डाइवर्सिफाइड. Like sometimes we get trapped into the diagnosis. Sometimes we get trapped into the emotions of the patient, and sometimes we get trapped our own prejudices. Okay, and that's why that we can't, many times we are not able to conclude what do we want. So nowadays, what is happening, that you will hear many things. आप लोग सुनते होंगे माइंड रूब्रिक्स के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब्स में आपको मिल जाएंगे. अब तो शायद बहुत ही ज्यादा है. और वहां पे दैट यू आर गोइंग टू लिसन द मीनिंग ऑफ द रूब्रिक्स. आपको रूब्रिक्स के मीनिंग बताए जाएंगे, उसको लगाने के डिफरेंट तरीके बताए जाएंगे. डॉक्टर सहगल का आइडिया क्या था? डॉक्टर सहगल ने जब ये माइंड को शुरू किया था, उनका आइडिया ये नहीं था कि उनको रूब्रिक के मीनिंग पढ़ाने हैं. I mean, his idea was not to teach meaning of the rubric. His idea was to convert the expression of the patient into the rubric. Now that is the one line expression. Now these expressions are coming from the common language of the patient. Like suppose, for example, that what we hear from the patient in our day-to-day clinic, like day-to-day practice, what happens? For example, if patient comes and he gets, little bit irritated with you, and he says, doctor, that already so much time have been wasted. Now this is the version of the patient. Already too much time have been wasted. I have tried allopathy, homeopathy, Ayurvedic treatment, but nowhere I got any relief. Now I have a doubt in my mind if you are able to do anything in my case. Now this is the version of the patient. Now how deep we can go with this version of the patient? Either we have to make a rubric or to understand only this point of the patient to start in the beginning. So patient ने कहा कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने आयुर्वेदिक भी किया, मैंने एलोपैथी भी किया, मैं सब ट्रीटमेंट. You know that 40% of the cases in homeopathy are coming after the patient have tried most of the things. Even homeopathy, as a homeopath, you get the cases where the patient has already tried allopathy, Unani, Ayurveda, yoga, homeopathy, 5 doctors, 10 doctors, all kind of medications. और I mean उस पेशेंट को जितना भी उसको मिल सकता है अपने तरीके से वो ढूंढ ढांड के कर चुका होता है. अब पेशेंट जो है वो इस बात से परेशान है कि उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता. वो इस बात से बहुत परेशान है कि तो इस बात से जब पेशेंट आपके पास तो आ गया, पेशेंट हैज कम टू यू with this idea that from nowhere he is getting relief and he is getting irritated.
I mean, inside he's like restless or irritated that what to do now. Still, he's in front of you and telling you the same story. Now, how to go deep now from here? I mean, what we have to ask the patient. For example, when a patient tells you that nowhere he's getting the relief, and he asks you the question, why I'm not getting relief from any treatment? Now, who will answer this question? A physician has to answer the question or a patient has to answer the question. किसकी किसकी ड्यूटी है, इसका आंसर कौन दे? We take perseverance and light desire. He is persevering and now want to know how much time it take light desire and perseverance. Maybe right. यही डॉक्टर सहगल नहीं करना चाहते थे. वो कहते हैं कि पहले आप पूरे उनकी बात की, पेशेंट की एक्सप्रेशन को समझ तो लो. आप रूब्रिक, डॉक्टर सहगल ने ना कभी भी रूब्रिक की तरफ ध्यान नहीं दिया. वो ये कहते थे पहले अब पेशेंट आया आपके पास, उसका एक एक्सप्रेशन है कि भाई मैं कहीं से ठीक नहीं हो रहा हूं अभी तक. अब मैं जब पेशेंट को इस बात को समझना चाहता हूं तो मैं पेशेंट से पूछता हूं कि तुम बताओ, तुम अभी तक ठीक क्यों नहीं हो? कोई तो वजह होगी ना. भाई डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, दवाई अच्छी नहीं मिली, या तुमने ढंग से दवाई नहीं खाई. कोई रीजन तेरे को तो पता होगा भाई, क्या कोई तो कमी होगी ना तेरे अंदर. भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई होम्योपैथी तुमने 10 डॉक्टर को दिखा लिया, एलोपैथी भी खा ली, आयुर्वेदिक भी खा ली, चाइनीज भी कर लिया, सब कर ली, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम? अब यहां से पेशेंट को जो भी वो पेशेंट बोलता है, ये होता है हमारा को थोड़ा सा हम नीचे अंदर, थोड़ा उसके अंदर घुसे, उसको बोलने का मौका दिया. पेशेंट हमारे पास आता क्यों है? क्योंकि उसको जो मेडिकल साइंस है उसको बोलने का मौका नहीं देती. हम लोग पहले ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि रूब्रिक बनाना है. सो दिस इज व्हाट डॉक्टर सहगल वांटेड, that we should not make rubric at the very first stage. Rather than we like to hear the patient, उसकी बात तो सुनो, वो कहना क्या चाहता है. हम इतने उतावले क्यों है कि रूब्रिक बना के मेडिसिन दे के फटाफट उसको क्लिनिक से बाहर निकाल दें. उसने क्या कह दिया? उसने यही तो कहा कि भी डॉक्टर साहब मैंने सारा इलाज कराया, सब कुछ कराया, अब ठीक है मैं आपके पास आया हूं, ज्यादा उम्मीद तो है नहीं मेरे को कि मैं ठीक हूंगा. अब पेशेंट जो है वो सबसे पहले एक स्टेज है कि वो आया है, वो डाउटफुल ऑफ रिकवरी में है. पहली बात उसको डाउट है कि भाई होऊंगा, अब यहां भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा. तो पहला क्वेश्चन है पेशेंट से कि भाई अब तुम मेरे पास तो आ गए हो, तो तुम क्या सोच रहे हो कि भाई तुम यहाँ आके ठीक हो जाओगे या यहाँ आके भी नहीं ठीक होगे? तुम क्या मतलब व्हाट फीलिंग यू आर कैरिंग नाउ? तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है? तुम क्या लेके आए हो मेरे पास? उम्मीद लेके आए हो, ना उम्मीदी है, क्या है? तो there are two things. Either the patient will say, yes, I'm hopeful that you will make me better, or he will say, no, I have a doubt. Still, I have a doubt, doctor. Frankly, I tell you, I have a doubt whether I will get better or not. Or the patient says, I'm hopeful. Or the patient says, no, I'm positive that I will get better. Because patient has come to you, so there has to be some reason, doubt, hope, or positive. There are 3 approaches the patient has come to you. That is the first point for him to understand. Now the second question is, which my first question was, तुम ठीक क्यों नहीं हुए अभी तक? इसका क्या कारण हो सकता है? कहां फंसे हुए हो भाई? तुम डॉक्टर को बता नहीं पाए प्रॉपरली, डॉक्टर तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा है, ये तो पेशेंट बताएगा ना. मुझे क्या पता कि वो क्यों नहीं ठीक हो रहा अभी तक, या तुमने ढंग से इलाज नहीं करवाया अभी तक, तुम्हारे में कोई कमी है, डॉक्टर में कोई कमी है, दवाई में कोई कमी है, भगवान तुम्हें ठीक नहीं करना चाहता. अब कई बार पेशेंट क्या बोलता है, थोड़ा सा भगवान की मर्जी, जब वो चाहेगा ठीक कर देगा. अब आपके जो जितने भी रूब्रिक आपने दिमाग में बनाए वो सारे फेल हो गए, क्योंकि उसने तो कहा जी नहीं ठीक हो रहा का मतलब है थोड़ा सा भगवान की मर्जी, जब चाहेगा ठीक कर देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा. अब क्या करें? मेरा तो काम है, मेरा काम है, मेरा धर्म है मैं दवाई लेना. मैं तो दवाई ही तो ले सकता हूँ, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अब सारा ट्रैक ही बदल गया. पेशेंट जो है वो आपके पूरे केस टेकिंग का ट्रैक बदल देता है. अब सपोज करो हमने पहले आपको 3 चीजें बता दी कि एक पेशेंट आपके पास जो आया है उसके मन में आपके प्रति, इलाज के प्रति
अपनी बीमारी के प्रति 3 चीजें, you have to note 3 things in a patient if you want to see the depth of the case. Patient's feeling for his own problem, patient feelings for the treatment, patient feeling for the medicine, and the patient feeling for the doctor for whom he want treatment. भाई जिसके पास आया उसके प्रति भी तो कुछ होगा ना, श्रद्धा है, भक्ति है, कहीं से सुन के आया है, विश्वास से आया है, क्या सोच के आया होगा, तो ये तो वो पेशेंट बताएगा कि टॉप मोस्ट फीलिंग उसकी क्या थी। डॉक्टर साहब मैं तो आपके बारे में बस सुन के आया हूँ। अब पेशेंट ने पहली पहली फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर दी कि वो आपके पास बहुत नाम सुन के आया, ही हैज हर्ड अबाउट यू अ लॉट एंड दैट हैज ब्रॉट द पेशेंट टू यू। अब डॉक्टर साहब मेरे को उम्मीद तो नहीं है कि मैं ठीक होऊंगा, फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप मुझे ठीक कर दें। ये पेशेंट का है, डाउटफुल ऑफ रिकवरी प्लस होप है। तो डॉक्टर मान ने शुरू किया परसिवरेंस प्लस होप, मैंने शुरू किया डाउटफुल ऑफ रिकवरी प्लस होप से, कि भाई उसको डाउट है प्लस होप है तभी वो आया है, तो होप रखे तो आया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होप रखे ही आया हो डाउटफुल ऑफ रिकवरी के साथ। हो सकता है वो डाउटफुल ऑफ रिकवरी के साथ भी वो इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, स्टिल ही हैज ए नेगेटिविटी इन द माइंड। उसको लगता है, अब सपोज करो मैं पेशेंट से बहुत पूछता हूँ, शायद मुझे नहीं लगता पता कि आप लोग पूछते हैं, जब पेशेंट मुझे कहता है कि डॉक्टर मुझे होप तो है, मैं होप को ना बहुत, आई ऑलवेज ट्राई टू क्लैरिफाई। For example, if I reach to a rubric hopeful, okay, still I carry with this rubric and I want to clear from the patient how much hope do you have, because sometimes the patient tell you the word hope but he doesn't understand, उसको पता ही नहीं होप का मतलब क्या होता है। सर होप है क्योंकि हमने एक डिक्शनरी में सुना हुआ होप कोई वर्ड होता है, जब होप तुम लेके आए हो तो होप की समझ भी है कि होप किसको कहते हैं। होप है अंधेरे में एक रोशनी, अंधेरे में एक रोशनी की किरण, अंधेरा है ना, तो अंधेरे में एक रोशनी की किरण है छोटी सी। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब मैं तो अंधेरे में बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कहा कि आप डॉक्टर सहगल के पास चले जाओ, तो थोड़ी सी रोशनी दिखी कि शायद डॉक्टर सहगल मेरा कुछ कर सकते हैं काम, उससे मेरे को थोड़ी सी होप आई। वो होप से मेरी डाउटफुल रिकवरी थोड़ी डाइल्यूट हुई, मैं फिर आपके पास आ गया। पेशेंट को मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं होती, बातें तो वो बहुत करता है बट ही हैज नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन कैसे काम करती है, वो कैसे ठीक होगा उसको ये नहीं पता, उसको ठीक होना है बस, कैसे ठीक होना वो उसको पता ही नहीं है, इज नाइव। वो आपसे फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट कम्स टू यू एंड से डॉक्टर मेक मी बेटर, आई वांट टू गेट बेटर क्विकली। अब पेशेंट ने बोला मेरे को जल्दी ठीक होना, हमने कैरी डिजायर टू फास्ट बना दिया, वी इमीडिएटली मेक ए रूब्रिक कैरी डिजायर टू फास्ट, बिकॉज डॉक्टर सहगल ने बोला है कि भाई इफ ए पेशेंट सेज आई वांट टू गेट बेटर क्विकली सो कैरी डिजायर टू फास्ट, तो हो गया। बट ये उसका एक वर्जन है, फीलिंग नहीं है, ये तो वो कह रहा है। क्या वो इसको वाक्य में ही वट एवर ही इज सेइंग ही इज लिविंग, ये वो कह रहा है बस, उसको मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर। सो वट एवर वी हियर फ्रॉम द पेशेंट in the line, whatever he says to you, doctor I think I will not get better, simply उसने बोल दिया, it's a very simple, patient say I think I will not get better, so why he has come to you, क्या फीलिंग लेके आया फिर। so feeling is a deeper sense, whatever patient tells you is a mask, वो मास्क है साहब, उसके पीछे जाना है आपने, मास्क के पीछे। so the deeper feeling in Sehgal method is, the deep depth is to know the feeling behind what he's telling you in the first line. Doctor, do you think you will make me better? Do you think I will get better? So the patient is putting onus to you. वो आपके ऊपर बात रखना है कि आप सोचते हो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आप क्या जवाब दोगे इसका, हाँ या ना? क्या कहोगे, ठीक हो जाएगा या कहोगे नहीं ठीक हो? आप तो कहोगे हाँ ठीक हो जाएगा। आपने आंसर दे दिया तो आप व्हाट हैव यू डन, आपने उसकी फीलिंग को मार दिया, यू किल्ड हिम, यू फिनिश द केस, आपने कुछ नहीं किया। तो मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि जब भी पेशेंट कुछ पहली लाइन बोलता है, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द फीलिंग बिहाइंड दैट।
ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा ही क्यों उसने, व्हाई डिड ही आस्क दिस क्वेश्चन कि मैं ठीक हो जाऊंगा? ये क्वेश्चन वो सबसे पूछता है या वो आपसे ही पूछ रहा है? और वेयर एवर ही गोज, अब अभी क्या है कि पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा, हमने लाइट डिजायर लगा दी। अब लाइट डिजायर में चलो हम चले भी गए, okay, we make the rubric light desire because he's asking if I get better or not get better, or doctor what do you think, पर दवाई कौन सी देंगे? लाइट डिजायर में से दवाई कौन सी देंगे ये भी तो पता हो, इतनी सारी मेडिसिन, फिर हम तुक्के में मोडेलिटीज के रूप में बेलाडोना, जेल्सीमियम, स्टेमोनियम, बस यहीं पे अटक जाएंगे जाकर, फिर हम लोग पूरी मेडिसिन नहीं खोज पाएंगे। सो मेरा एक क्वेश्चन जो पहला मेरे सेंटेंस दिया कि पेशेंट ने कहा कि मेरे माइंड में इस समय डाउट है कि मैंने इतना सारा इलाज किया, मैं ठीक नहीं हुआ, तो डाउटफुल ऑफ रिकवरी, तो वो मान के हम चलते हैं कि डाउटफुल ऑफ रिकवरी, ठीक है। अब वो कई पेशेंट हैं, इसी लैंग्वेज को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट इज, डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी मेरा बर्बाद हो चुका है, आई हैव ऑलरेडी स्पेंड टू मच टाइम ऑन द ऑन माई ट्रीटमेंट, फ्रॉम नो वेयर आई हैव गॉट एनी रिलीफ, आई हैव स्पेंड सो मच मनी and I don't want to spend more money on it. तो आपके पास फिर आया क्यों? पैसा तो आप भी तो लोगे ना, आपको फ्री तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। So why, for example, a patient says, I have already spent so much money on my case. Now I don't want to spend money on more on my case. तो भाई फिर मनी तो मैं ले ही रहा हूं ना, मनी तो तुम जब मेरे पास आए हो तो पैसा तो खर्च कर ही रहे हो ना, तो तुम मेरे पास क्या फीलिंग लेके आए हो? सर मैं सच बताऊं आपको, मैंने पता किया तो मुझे लगा कि भाई आप जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, यहाँ पे मैंने 10 होम्योपैथ को फोन किया, उसमें से सबसे चीप आप ही हो, जिसका प्राइस बहुत कम है। तो मुझे लगा चलो ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च होगा, थोड़ा ही डॉक्टर साहब लेंगे, तो आप तो 10 रुपए में दवाई दे दोगे, देख लेते हैं, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखेंगे फिर क्या होगा। अब देखिए ये फीलिंग आपने कैच नहीं करते अगर, और आपने पेशेंट से पूछा नहीं होता कि भाई फिर वो आपको क्यों चूज किया उसने पेशेंट, क्योंकि अब पेशेंट इसको या तो खा जाएगा, झूठ बोल जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि वो सच बोले, आपको सच बताए कि भाई वो आपके पास क्यों आया। तो वो बोलेगा कि सर मुझे लगा कि भाई मैं और पैसा नहीं खर्च कर सकता, ऑलरेडी मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, अब मुझे लगता है कि चलो अगर थोड़े से पैसे में थोड़ा सा काम हो जाता है और इसमें मेरा इलाज हो जाए आपसे, तो मैंने सोचा कि चलो अब होम्योपैथी में करा लेते हैं। तो व्हाई पीपल कम टू होम्योपैथ, नॉट दैट वी आर सेफ और वी हैव वी आर वेरी देर होगी बट ठीक हो जाऊंगा, नहीं, एक कारण और है, हम चीप हैं, हम पैसे बहुत कम खर्च करते हैं, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराते हैं, हम इतना खर्चा भी नहीं कराते लोगों का, ये भी तो एक कारण है डीप में। तो ये है सच्चाई। सो फीलिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीलिंग? फीलिंग वो है जो पेशेंट सच्चाई से आपके सामने अपनी बात को रखता है, और जो वो बात कर रहा है उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, वो सच होनी चाहिए, उसके पीछे सच्चाई होनी चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। लेकिन उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए अगर आपने पहले से ही रूब्रिक बना दिया तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वो डॉक्टर सहगल मेथड में, हमारे मेथड में एक डेप्थ तो है, ठीक है, और हम डीप में पेशेंट के पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको पहुंचने के लिए थोड़ी सी कला ये है कि आपको मीनिंग ऑफ द रूब्रिक, ठीक है आप पढ़ने के लिए अच्छा है, आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, अच्छी बात है।